So let us begin with again ratio and proportion with that we are discussing in our last class. Ratio and proportion. Okay, the thing is, if we are having any two quantities and we are comparing them on the terms of how many times one quantity is to another one, एक क्वांटिटी दूसरी वाली क्वांटिटी के कितने टाइम्स है, हाउ मेनी टाइम्स, then we say that the two quantities we are finding the ratio. See, suppose I am writing here 4 and one side I am writing 16. So this 4, this 16 is how many times of this 4 we will calculate. 4 4 ja, है ना, see 4 4 ja, it is 4 times. So that means what, if I am cancelling it, 4 1 ja, 4 4 ja, so what ratio I am getting? I am getting 1 is to 4. This thing I already told you that we use this symbol, ये वाला जो symbol है ना, इसको हम use करते हैं and it means is to. Okay, so this is to symbol is used to denote the ratio. Then the second thing we are saying is 1 is to 4 is what? It is the ratio, huh? But ratio of two quantities, which two quantities we are saying? We are saying that I have taken these two, 4 4 ja 16. Okay, so that means what, if I am having two quantities and one thing I already told you in last class, that the two quantities should be in same units, that both should have same units, दोनों की units जो हैं same होनी चाहिए. This thing I already told you, है ना. See, if I am having 4 meter and 700 centimeter, if I need to find the ratio, अगर मुझे इनका रेशियो फाइंड आउट करना है 4 मीटर एंड 700 सेंटीमीटर, कैन आई फाइंड इट डायरेक्टली? क्या डायरेक्टली फाइंड आउट होगा? नो, बिकॉज बोथ आर हैविंग डिफरेंट यूनिट्स, दोनों की यूनिट्स क्या हैं? डिफरेंट है. सो दैट मीन्स वी विल कन्वर्ट द फर्स्ट वन, हम फर्स्ट वाले को कन्वर्ट करेंगे. सो आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर टू सेंटीमीटर, सो इट विल बी 400 सेंटीमीटर. व्हाई? बिकॉज 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. So that means 4 meter will be 400. Now see, the same units are there. This 400, this 700, both are having same unit. So if I am finding the ratio now, it will be 400 divided by 700. So that means 0 to 0 cancel out. We are left with 4 is to 7. And this is our answer to find the ratio. ऐसे हम लोग ratio find out कर सकते हैं. First thing, the unit should be same. The second thing, whenever we are finding the ratio, just try to divide it up to where? Up to that term where it is possible. जहाँ तक possible है वहाँ तक divide कर दो. So it will be what? It will be a ratio 4 is to 7, like this we are having. Okay, let us start with it. We will be doing proportion now. Okay, so what is this proportion? अब तुम लोगों को रेशियो तो पता लग गया. रेशियो क्या है? दैट हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी इज टू अदर. देन व्हाट इज प्रोपोर्शन? सी, इफ वी आर हैविंग एनी टू डिफरेंट रेशियोज. हाँ, सपोज देखो मेरे पास यहाँ पे है 6th क्लास, दिस साइड आई एम हैविंग 7th क्लास. इन 6th क्लास आई एम सेइंग द बॉयज आर 25 and girls are 30. In 7th class I am saying boys are 20 and girls are 24. Now if I am finding the ratio of boys to girls in 6th class, अगर मैं यहाँ पे ratio find out करता हूँ, what will be the ratio? It will be 25 by 30. So how much? 5 5 ja, 5 6 ja. So it will be 5 is to 6. Then I will be finding the ratio of boys to girls in 7th class. So it will be 20 by 24. So it will be 4 5 ja, 4 6 ja, and we are getting 5 is to 6 again. Now you must be seeing one thing. In both the cases, 6th class, 7th class, in both the cases we are having the what? Same ratio. The equal ratio is there. So that means what? Whenever we are finding the ratio and if it is same, see, whenever we are finding the ratio and if it is same, then we say what? The terms are in
proportion, the two terms, the two things, these two things. See, 6th class and 7th class, what are they? They are in proportion. So then we say they are in proportion. Now how do we write the proportion? हम लिखते कैसे हैं? अब हम लोगों को देखो चेक करना तो आ गया, हमने बहुत इजीली चेक किया. चेक करने का क्या है? तो अब हम लिखेंगे कैसे कोई चीज प्रोपोर्शन में? देखो सबसे पहले जब हम प्रोपोर्शन के लिए फाइंड आउट करते हैं, इफ वी आर फाइंडिंग एनीथिंग इन प्रोपोर्शन, फर्स्ट थिंग व्हाट वी आर डूइंग, पहला काम हमने क्या किया है? फर्स्ट थिंग वी आर डूइंग इज वी आर फाइंडिंग द रेशियो इन बोथ केसेज. दोनों केसेज में हमने क्या फाइंड आउट किया? रेशियो फाइंड आउट करना तुम लोगों को अच्छे से आता है, तो हमने क्या किया है? दोनों केसेज में रेशियो फाइंड आउट कर लिया. वी हैव फाइंड आउट द रेशियो हियर. नाउ द सेकेंड थिंग, अब सेकेंड चीज हम क्या करते हैं? सेकेंड हम चेक करते हैं कि क्या रेशियो इक्वल है. अगर रेशियो इक्वल है, इफ द रेशियो आर इक्वल, अगर दोनों केसेज में रेशियो इक्वल आया है, देन वी से हम क्या बोलते हैं? यस दे आर इन प्रोपोर्शन, दे आर इन प्रोपोर्शन. ठीक है, तब हम बोलते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है. दिस इज द थिंग, जब रेशियो इक्वल होता है तो हम बोलते हैं ये प्रोपोर्शन में है. ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर हम यहाँ पे देखो, इसको प्रोपोर्शन को लिखेंगे कैसे? क्या हम रेशियोज को प्रोपोर्शन लिख देंगे? नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू राइट रेशियो टू प्रोपोर्शन. तो ये आएगा, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे 25. हमने 25 का रेशियो किससे फाइंड आउट किया था? 30 से. सो वी विल राइट 25 इज टू 30. देखो 25 का रेशियो फाइंड आउट किया जब 30 से, 25 इज टू 30, ये क्या आया? 5 इज टू 6. नाउ वी विल मार्क 4 डॉट्स. ये जो 4 डॉट्स दिख रहे हैं, ये वाले जो 4 डॉट्स मैंने लगाए हैं ना, ये सिंबल होता है किसका? प्रोपोर्शन का. प्रोपोर्शन. दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शन. एंड वी विल राइट, देखो 25 इज टू 30, फिर हमने फिर बाद में किसका रेशियो फाइंड आउट किया? 20 इज टू 24. ओके, सो दिस इज हाउ वी राइट द प्रोपोर्शन. कभी भी ऐसा नहीं करना है कि सर सोल्व करके तो 5 इज टू 6, 5 इज टू 6, तो हम ऐसे लिखेंगे 5 इज टू 6 और फिर 2 डॉट्स, 2 बार ये लगाया 5 इज टू 6. कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, ये प्रोपोर्शन नहीं होगा. प्रोपोर्शन में हम कौन सी टर्म्स को लिखते हैं? हम लिखते हैं ओरिजिनल टर्म्स को. ओके, विदाउट कैंसिलेशन, जिसमें हमने कैंसिलेशन नहीं किया है. ओके, दैट टर्म्स वी राइट इन प्रोपोर्शन, उसमें लिखते हैं. देखो ये जो 25 और 30 ये ओरिजिनल था ना, हमने कुछ चेंज नहीं किया था इसमें. 20 और 24 ये भी ओरिजिनल था. तो वेन एवर वी आर राइटिंग प्रोपोर्शन, जब हम प्रोपोर्शन लिखते हैं तो हम ओरिजिनल टर्म 25 इज टू 30, फिर हम प्रोपोर्शन का साइन लगाते हैं, फिर लिखते हैं 20 इज टू 24. और ये लिखना कब है? कब लिखना है प्रोपोर्शन? जब हम रेशियो फाइंड आउट करें और चेक करें इफ इट इज इक्वल, अगर इक्वल है तो. चलो, जब हमने प्रोपोर्शन चेक कर लिया है, सी वी हैव ऑलरेडी चेक दैट दीज आर इन प्रोपोर्शन, हमने चेक कर लिया कि ये प्रोपोर्शन में है. तो अब हम क्या करेंगे? हम बताएंगे एक्सट्रीम और मिडल टर्म्स. अब ये एक्सट्रीम और मिडल टर्म क्या होते हैं, इसको समझो ध्यान से. सी, जब हमने, हाँ, अब हम पढ़ेंगे अबाउट एक्सट्रीम एंड मिडल टर्म्स. अब देखो, मैंने अभी ना प्रोपोर्शन में लिखा था, मैंने क्या लिखा था? 25 इज टू 30, तुम राइट साइड में देख सकते हो. देन प्रोपोर्शन 20 इज टू 24, ये लिखा था ना मैंने. अब एक्सट्रीम टर्म क्या होती है और मिडल टर्म क्या होती है? अगर तुमसे कोई पूछे कि एक्सट्रीम टर्म्स बताओ, इस प्रोपोर्शन में एक्सट्रीम क्या है? एक्सट्रीम का मतलब होता है एंड टर्म्स. एक्सट्रीम टर्म्स का क्या मतलब होता है? एंड टर्म्स. तो एक्सट्रीम, देखो एंड पे क्या है? विच आर द एंड टर्म्स? एंड टर्म्स कौन सा है? सी, दिस 25 एक एंड पे ये है, और दूसरे एंड पे कौन से वाली टर्म है? 24. सो जब तुम एक्सट्रीम टर्म्स लिखोगे, तुम क्या लिखोगे? 25 एंड 24. और जब तुम मिडल टर्म लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे? मिडल टर्म, you will be writing 30 and 24. 30 and 20, sorry, 30 and 20. These are what?
these are the middle terms. So this is you have to look for extreme terms, middle terms, है ना, ये चीज़ें तुम लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए. सबसे पहले मैं फिर से यहाँ पे देखो एक एक करके पूरे स्टेप्स बताता हूँ प्रोपोर्शन में कैसे फाइंड आउट करना है किसी भी चीज़ को. सारे स्टेप्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है. देखो फर्स्ट थिंग, फाइंड द रेशियो. सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट करना है ऑफ बोथ केसेज. रेशियो ऑफ ईच केस. ईच केस मतलब जितने भी केस वहाँ पे दिए होंगे ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे 6th क्लास 7th क्लास दोनों अलग अलग थी ना, तो हमने 6th का भी रेशियो किया, 7th का भी किया. उसके बाद सेकंड क्या करना है, चेक इफ रेशियो इज इक्वल. चेक करना है कि रेशियो इक्वल है या नहीं है, ठीक है, ये चेक करेंगे. थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, रेशियो चेक कर लिया. उसके बाद थर्ड पार्ट में हमने क्या किया, हम उसको इफ इट इज इक्वल, अगर वो इक्वल है, इफ इक्वल राइट ओरिजिनल टर्म्स इन प्रोपोर्शन. ओरिजिनल टर्म्स को प्रोपोर्शन में लिखना है. ओरिजिनल टर्म्स इन प्रोपोर्शन. जैसे मैंने ये लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये ओरिजिनल टर्म्स को लिखा था मैंने 25, 30, 20, 24, ये ओरिजिनल टर्म्स इन प्रोपोर्शन. देन फोर्थ पार्ट, फोर्थ हमने क्या किया, राइट एक्सट्रीम एंड मिडल टर्म्स. राइट एक्सट्रीम एंड मिडल टर्म. मिडल टर्म्स, ठीक है, एक्सट्रीम और मिडल टर्म्स को लिखना है. तो ये सब करना होता है हमें प्रोपोर्शन के लिए, ये सब स्टेप्स हैं. ओके, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू. दिस इज बैग 1, दिस इज बैग 2. इन दिस बैग 1 वी आर हैविंग पेन 24 say 27 and pencil 54. Okay, in bag 2 we are having pen 24, pen are 24 and pencil 48. Okay, so tell me whether these two are in proportion. क्या ये दोनों proportion में हैं? Is bag 1, is the material in bag 1 proportion with material in bag 2? क्या ये proportion में हैं? और अगर हैं तो इनका extreme, middle सब कुछ करना है. Write your answer. Okay, so how to solve it? We are having 2754. So if I am finding the ratio, that means it will be 27 by 54. I can cancel it with any numbers like 3 9 ja 27, 3 1 ja, yes, 3 8 ja 24, then 9 1 ja 9, 9 2 ja 18. So I am getting the ratio 1:2. Here also I will find the ratio, so it will be 24 by 48. So if I am finding, suppose I am cancelling it with 4, so 4 6 ja 24, 4 1 ja 4 2 ja, so again 6 1 ja 6 2 ja, so I am again finding the ratio 1:2. See, so the case is, मैंने बताया था अगर रेशियो इक्वल आता है, if you are getting the same ratio, that means we can write them in proportion. So we can write in proportion. So how to write in proportion? We will be writing 27:54, क्योंकि हमने यहाँ पे 27 और 54 का रेशियो फाइंड आउट किया था, जो कि कितना आया 1:2. अब हम इसको लिखेंगे 4 dots. We will be using 4 dots for proportion symbol. Then we will be writing 24 and 48, क्योंकि इनका रेशियो फाइंड आउट करने पे 1:2 आया, तो यहाँ पे लिखेंगे 24:48. So now if we will be writing the extreme terms, extreme means end terms, so extreme terms are 27 and 48. 27 और 48 end में है तो extreme terms. If we are writing middle terms, so it will be 54 and 24. So these are the middle terms. So this is how we can write extreme and middle terms, and every question we can solve for proportion.
So in exercise 12.2 first question you are given with 4 terms in every part. You have to take 2 terms together. कैसे लेना है देखो, जैसे मान लो मैं 15, 45, 40, 120, जैसे ए पार्ट जो है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, उसमें हमारे पास ये टर्म्स हैं 15, 45, देन 40, देन 120, और हमें क्या चेक करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है, आर दीज इन प्रोपोर्शन, दिस इज व्हाट वी हैव टू चेक, ये हम चेक करेंगे, आर दीज इन प्रोपोर्शन. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक फर्स्ट 2 टर्म्स, पहली 2 टर्म्स लेंगे, इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल डू सेकंड 2 टर्म्स, इन 2 टर्म्स का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, ऐसे करके रेशियो फाइंड आउट करना है. सी रेशियो फाइंड आउट किया 15 और 45, 15, 45, so 15 1 ja, 15 3 ja, how much we are getting, 1:3. then ratio again हम find out करेंगे 40 और 120 का, so 40 upon 120, 0 to 0 cancel, 4 1 ja, 4 3 ja, so 1:3. see फर्स्ट वाला ए पार्ट जो है ना, इस ए पार्ट का आंसर मैं लिख सकता हूं यस दे आर इन प्रोपोर्शन, ऐसे हम यस लिखेंगे, और अगर नहीं रेशियो इक्वल आएगा, इफ रेशियो इज नॉट इक्वल, तब हम क्या लिखेंगे, बट वी विल राइट नो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन.